get a hand. We'll be having a live dive right here in this room on web application. Deep dive into LDAP and Kerberos long session. All right. And there's water bottles at the end. If you really, really need to leave, you can use the pack exits. And without further ado, it's time to bring on the stage our head of architecture and resident Manchester United fan. Please give it up for Mr. Kerberos. Okay, just before starting, am I audible at the end of the course? Okay. Cool. So today's session will be mostly around LDAP and Kerberos vulnerabilities, and I'll also share a brief description of LDAP and Kerberos for people who might not have any context of it. So before to begin, can you guys show of hands who knows anything like what? So okay, so I can see couple of people are here. I begin. Anyway, so I'll try to cover more about LDAP and Kerberos protocol as well, so everyone has a good idea about it. How many of you guys expected? So for people who are not from miniOrange, my name is Avi Saxena. I'm working as a senior software engineer, and I have been working in Kerberos and LDAP technologies for the last 3 years. Along with that, I have been handling quite a few clients, complex use cases related to LDAP and Kerberos. I think, have worked with around 200, 300 clients in last 3 years. Other than that, I also work on API security use cases. So if anyone wants to interact, please find me at my booth, WP Work. So I'm advertising that as well from there. Cool. So what is a directory? Anyone in the audience would like to say what is a directory? Anyone? Just a basic definition. तो बस क्या समझना कोई तो होगा LDAP directory क्या होता है. So a directory is nothing. It's just for a layman, it's just a hierarchical database which enables you to mimic an organization structure. And you can add objects like users, devices. Devices include printer, machines, everything. You can create group policies as object. And the main advantage of using this as a IDP is you can mimic exactly what your organization structure is. An Active Directory can be connected with external applications for authentication and performing CRUD operations like adding, removing users, creating new group policies. And for that, we can use LDAP protocol. If I talk about examples of a directory or LDAP server, we say in layman at time, it would be Microsoft Active Directory, pre-IPA. Azure AD is also a kind of Active Directory. We have OpenDJ, OpenLDAP. But if I talk about the popularity, Microsoft Active Directory is the most common one, which I will say almost 95% of the people use, or the 95% of organizations use. Okay. So I hope everyone knows what basically LDAP is, right? A directory. DB पता है क्या सबको? Database. बस उसी को बहुत अच्छा कर दिया. बहुत अच्छा. काफी अच्छा. So coming on to what is LDAP protocol, as the full form is Lightweight Directory Access Protocol. As the full form suggests, it's a lightweight protocol used to access the directory. Although there are a few things which are very interesting about this authentication protocol. So LDAP can be used to authenticate users and perform CRUD operations as well. So if you want to authenticate and bind users, you have to authenticate someone against the credentials of their Active Directory. You can use LDAP protocol. But in case you want to add users, remove users, you want to reset their password, you want to fetch data from the directory, everything can be done using the simple protocol. The protocol itself includes few steps, and you need to create a query using search filter, search basis. You have to provide some other information as well. But it's a one-stop solution if you want to integrate services of your Active Directory in any third party or any app you might be using inside your network or outside network. Also, one point I made in the previous slide, if you go to big organizations where data security is of paramount importance, it is for everyone. But in case someone is super skeptical about it, then Active Directory can be used inside an internet network. You can create your own network
You may have a physical machine or a cloud-hosted internet network. So that is something which you will hear a lot in the coming slide. So as I said, LDAP from outside the network as well and can be extended to user services or activity in third party. So before proceeding, everyone is with me, right? We know what directory is. We know what LDAP protocol is. So I have been talking about Active Directory, LDAP, but use कहाँ होता है? That could be a question arising in few of your minds. So anyone has an idea कि किसी के organization में use हो रहा हो या कुछ हो रहा हो? LDAP server. Authentication, that's one thing. Okay, anyone else? That's a good example, and that's very easy to do with AD. That's a good point. So if I'll talk about business use cases, so LDAP has been from almost 30 years, popularly from almost 25 years, 30 years. It was introduced first in 90s and was being used as a on-premise version more. But with time, Microsoft had improved it a lot, and you can I think just show you the server. They see this cloud thing. So basically, you can now integrate your LDAP server with the cloud Active Directory. Cloud Active Directory as in Azure AD. And when we talk about Azure, you can integrate it with the other Azure apps like Power BI and all that. And you can integrate it further with Office 365, which all of us almost use. In any organization, more than 50 people, I think we use either Google services or Microsoft services for emails, accounts and everything. So अगर LDAP server setup कर लिया है, you need not to take about कि email में क्या password रखूँ मैं और अपना Jira अगर मैं application के products across में क्या है. You can have a one-stop solution, just host the damn thing, connect it with your cloud applications, use LDAP protocol for connecting the on-premise version. You can use SAML and OAuth for connecting to cloud services. You can enhance Office 365 using LDAP services. किसी को if you want to change group policy, you just have to change it over here. But अगर if you're different services, we are having different IDPs, it kills more of your resources. If someone leaves the company or comes into the company, you have to register him everywhere. You have to change policies everywhere, which can create a security issue. But if you use Active Directory, it will just give you a whole suite of plugins. It's like a whole ecosystem which can be integrated further. So I hope it gives a brief idea कि कहाँ पे वो use हो रहा है business. Any questions till now? Okay, so interesting part. So this is Kerberos. Anyone heard about it? It's as dangerous as this dog from Harry Potter looks like. ये गाना बजाने पे सोता नहीं है और टिकट देने से पहले बहुत पूछताछ करता है. So beware of dogs होता है, वैसे beware of Kerberos. ठीक है. Although it can give you a nightmare if you really have to set it up for your organization. Okay. So what is Kerberos? Anyone? Okay. हाँ, कोई है Kerberos का किसी को पता हो already? It just keep which are affect the for the if yeah, you're almost right. Anyone else would like to add something in it? Right. So as you said, it is a protocol. It's an authentication protocol, which is typically used in a domain joined machine. Domain joined machine as in कि if I talk about on-premise Active Directory का वो जो पूरा ecosystem की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो machines होती है ना, उनको हम domain joined machines बोलते हैं, which are connected to the domain controller. Domain controller is the place where everything is controlled and your Active Directory is also hosted on that particular server. So उससे connecting जो machines होती है उनको domain joined machines बोलते हैं, and it can be used for using the Kerberos protocol. Now, when we talk about workstations and domain joined machine and all that stuff, so what need occurred for Kerberos to be developed? LDAP था हमारे पास, हम उससे भी कर सकते थे, but I guess सब लोग कॉलेज से तो निकले हैं कभी ना कभी, ठीक है. कॉलेज में
लैब सेशन किसी ने अटेंड किया है कभी? लैब्स होती थी, ठीक है? सो ऐसा होता था क्या कि हम किसी भी लैब में जाते तो हम उसी पीसी पे बैठेंगे, ऐसा कोई था क्या? तो ओसीडी वाले लोग मतलब मेरे जैसे लोग करते हैं कभी भी, नहीं मेरे को वही चाहिए। बट हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर प्रेजेंट जिसने लैब में हमेशा कभी ना कभी अलग-अलग पीसीज़ यूज़ किया, जस्ट शो ऑफ हैंड, ठीक है? सो डू यू थिंक इट इज़ राइट टू ट्रस्ट अ मशीन? किसी मशीन को ट्रस्ट करना चाहिए, यूज़र को ट्रस्ट करना चाहिए? देयर कम्स द रिक्वायरमेंट फॉर Kerberos. Kerberos is used to trust the users क्योंकि डोमेन जॉइन मशीन में कोई भी यूज़र आके कोई भी मशीन यूज़ कर सकता है। इट कैन बी अ इवेंट व्हिच इज़ पॉसिबल। तो इस वजह से देयर वाज रिक्वायरमेंट टू ऑथेंटिकेट यूजर अगेंस्ट द एक्टिव डायरेक्टरी एंड नॉट ट्रस्टिंग द वर्कस्टेशन इटसेल्फ। सो उस वजह से Kerberos को किया था एंड इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एमआईटी रिसर्चर्स ने डेवलप किया था एंड इट वाज अ प्रोटोकॉल बेटर देन एनटीएलएम। एनटीएलएम वाज आल्सो अ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोटोकॉल विथ क्वाइट अ फ्यू वल्नरेबिलिटीज। तो एलडैप को एमआईटी ने किया था, उसको एनहांस करके माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेट किया, ठीक है? सो वर्कस्टेशन को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, यूजर ट्रस्ट बिल्ड करना जरूरी है, इस वजह से Kerberos को इंट्रोड्यूस किया गया। Kerberos कैन ऑल्सो एक्ट एज अ थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर, मतलब निष्पक्ष है वो, ठीक है? थर्ड पार्टी है। इफ यू आर यूजिंग एनी सर्विस, Kerberos का जो सर्वर होता है, यू कैन कीप इट सेपरेट फ्रॉम एक्टिव डायरेक्टरी। उसका सर्वर जो I'll cover it in the later sites. We have KDC, Key Distribution Center, which is the main component of the whole protocol. So उसको तुम सर्वर पे नहीं रखते हो, डीसी पे नहीं रखना होता। You can keep it on any server, any third party. It can be a layer server as well. तो वो एक थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेटर है। और ऑफ कोर्स उसके साथ थोड़े से और सिक्योरिटी मेजर्स लेने चाहिए, मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट that machine is not getting vulnerable and all that stuff, because of which Kerberoasting will happen, which we'll cover further. But yeah, being a third party, it is, gives a more secure sense, and it also helps you for SSO. In the next slide, we cover why to use Kerberos. तो एक रीजन तो वर्क स्टेशन का कवर किया है कि ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते, वो रिक्वायरमेंट थी, लेकिन Kerberos यूज करके फायदा क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथेंटिकेशन इज रिक्वायर्ड एट मल्टीपल स्टेप्स नाउअडेज। आई गेस अगर even if you are having a very simple job, then also it'll be simple IT job अगर है, तो उस पर भी मिनिमम 5 से 10 एप्लीकेशन तुम करोगे ही करोगे, ठीक है? तो उस केस में क्या करेंगे, बार बार पासवर्ड तो डालेंगे नहीं। उसी वजह से एसएसओ की रिक्वायरमेंट है, एंड थैंकफुली वी आर हैविंग दिस कॉन्फ्रेंस बिकॉज वी टैप्ड इनटू दैट एरिया ऑफ सिंगल साइन ऑन। सो Kerberos can be used for single sign on. It is bit different than single sign on. It can be called as auto login. You don't have to enter your credentials. अगर वर्क स्टेशन पर अपने क्रेडेंशियल्स डाल के लॉग इन कर दिया है तो Kerberos enabled ऐप्स अपने आप चल जाएंगे। यू डोंट नीड टू ऑथेंटिकेट देम अगेन एंड अगेन। दैट्स द एडवांटेज ऑफ हैविंग Kerberos enabled. Okay, and the second thing is sending username and password is always not that secure. अगर हम हर जगह LDAP प्रोटोकॉल यूज करेंगे, we don't like we are depending completely on LDAP, then we have to send the username and password. If you say LDAP में पहले तुम बाइंड करोगे किसी सर्विस अकाउंट से, उसके बाद यू विल बी सेंडिंग दी क्वेरी यूजर्स यूजरनेम एंड पासवर्ड। सो इफ योर मशीन और एप्लीकेशन गेट्स वल्नरेबल और गेट एक्सप्लॉइटेड, LDAP इंजेक्शन जैसे अटैक्स करके इजीली अटैक किया जा सकता है। बट Kerberos के केस में वो चीज़ इरेडिकेट हो जाती है बिकॉज हम लोग यूजरनेम पासवर्ड भेज नहीं रहते। सो दीज आर टू मेन एडवांटेजेस ऑफ वाई यूजिंग Kerberos, या फिर जहाँ पे Kerberos यूज हो सकता है। So I hope you get a good idea what Kerberos is, not how it works, but what it is, right? Anyone familiar or have ever set up Kerberos? कोई है क्या? Okay. So do you think it's easy to set up? Why? It makes that beautiful, being complicated. Cool. So let me explain Kerberos. Okay, so it can be that confusing or may not be. नहीं हो तो बताना, फिर मैं टीचर का एक्सप्लोर करूँगा करियर। सो कुछ टर्मिनोलॉजीज है which we should know before knowing how Kerberos protocol works. First is a client. Client कुछ नहीं है, एक जो सोर्स अपना होता है जहाँ से
स्टार्ट होता है जो कि रिक्वेस्ट करता है, एक वर्क स्टेशन होता है। देन वी हैव की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर. Key distribution center is the one server which is deployed. Can be inside network or outside network. It depends upon your configurations. But it is responsible for granting TGTs and TGS. Ticket grant होता है और या सिंपल शब्दों में बोलूँ तो Kerberos एक टिकटिंग प्रोटोकॉल है. टिकट मिलता है तो तुम्हें एक्सेस मिलता है एंड KDC is the one which gives you a ticket. Okay. We'll see what TGT is and TGS is. TGT is a ticket granting ticket, as the name suggests. It is complicated to understand, but असली टिकट ये जो टिकट चाहिए होता है ना उसको TGT बोलते हैं. I hope that helps. ठीक है. Then we have the ticket granting service. The service which actually grants you the original ticket, which actually helps you to authenticate and use the services which you are trying to use. And the last one is service principal name. Service principal name is a kind of a code, not code. It's अगर मैं www.miniOrange.com पे Kerberos enable कर रहा हूँ, so my service principal would be http:/miniOrange.com. ठीक है. KDC क्या करता है कि SPNs को मैप करके रखता है अलग अलग अकाउंट के, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकते हैं. तो उस केस में सर्विस प्रिंसिपल नेम यूज होता है. एंड आई हैव मिस वन थिंग ओवर हियर. वी ऑल्सो हैव अ सर्विस अकाउंट विच इज प्रेजेंट इन द एक्टिव डायरेक्टरी विच इज यूज फॉर इनेबलिंग द Kerberos सर्विस. उसी में हम लोग डेलीगेशन सेट करते हैं और इंक्रिप्शन मेथड सेट करते हैं. ठीक है. तो उस केस में जो सर्विस प्रिंसिपल नेम होता है ना वो काफ़ी रोल में आ जाता है, बिकॉज सर्विस प्रिंसिपल नेम के बेसिस पे आप सर्विस अकाउंट को रीच करते हो. ठीक है. So I'll try to explain working of Kerberos. Okay, so just bear with me. If you have any doubt, then I will tell you again. Is this font visible to you guys? Okay, I hope you can see this thing: authentication server and ticket granting server. Okay. For those of you who doesn't know Kerberos already, I'll say just focus कि key distribution center होता है. So the first steps which comes into the picture is user sends a authentication request to the KDC. KDC में अपने पास होता है ऑथेंटिकेशन सर्वर. तो ऑथेंटिकेशन सर्वर क्या करता है? इट मेक्स श्योर कि जो यूजर्स आया है उसको टिकट पाने की एक प्रिविलेज भी है. टू गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल, अगर इस कॉन्फ्रेंस पे सेशन अटेंड करना है तो हेल्प डेस्क पे कोई चेक करेगा कि आप जाने के लिए हो तैयार. सपोज वी हैव टू गार्ड्स. द फर्स्ट वन चेक्स कि इसको दे सकते हैं क्या टिकट. दैट्स द रोल ऑफ ऑथेंटिकेशन सर्वर. वो यूजर नेम चेक कॉन्फ़िगरेशन चेक करता है और टिकट ग्रांटिंग टिकट देता है. जो मेन टिकट पाने के लिए जो टिकट चाहिए होता है TGT वो करता है एंड उसको इनक्रिप्ट करता है यूजिंग अ प्राइवेट की, और जिसको यूजर डिक्रिप्ट कर सकता है अपनी की से. वो जो ओके, तो कैन यू सी दिस ऑथेंटिकेशन सर्वर टू यूजर. तो जो ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, ये वाला जो टिकट होता है वो यूजर के पास वापस आता है. यूजर उसको डिक्रिप्ट करता है, उसकी वैलिडेशन चेक करता है और टाइम स्टैम्प होता है उसमें. टाइम स्टैम्प को वापस यूज करके उस टिकट को वापस डिक्रिप्ट करके इंक्रिप्ट करके वापस एक ADC के पास भेजता है तो टिकट ग्रांटिंग सर्वर. ठीक है. टिकट ग्रांटिंग सर्वर उसको डिक्रिप्ट करता है और वापस से एक सर्विस टिकट देता है विच इज फर्दर सेंट एट लास्ट टू द सर्विस. So there's a two-way communication between the KDC and the user. पहले जाके वो चेक करता है कि इसको टिकट देना नहीं देना है. टिकट वापस आता है, टाइम स्टैम्प बनता है, वो वापस जाता है, वापस यहाँ आता है. और जो हमारा टिकट होता है उसमें कैशिंग होती है. तो कैशिंग भी TGS पे सेट होती है कि वो टिकट कितनी देर तक वैलिड रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम बार बार उसको पिंग कर रहे हैं. कुछ वैलिड होनी जरूरी है, तो अपने कैशिंग में स्टोर करता है. So this makes secure but also at times vulnerable, which we'll be covering in Kerberoasting. Yeah. So कुछ encryption methods जो होते हैं, जो मैं करूँ encryption की, अगर वो सही से सेट नहीं है तो your system can be vulnerable to threats. Okay. So this is the what I was going to cover in LDAP and Kerberos. So just a quick question. Everyone knows what LDAP is and what Kerberos is. ठीक है. ये आया किसी को या फिर ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या अभी भी? Cool. So we'll now talk about
Kerberos and LDAP vulnerabilities, मतलब मुद्दे की बात पे आते हैं, ठीक है. So there are many attacks which nowadays we, at least we have hear it from our client, but these are the top four which are quite easy to understand, वो मैंने cover करे. The first one is password spraying password. आगे देखते हैं. Kerberoasting, डोंट वरी, वो कुत्ते का रोस्ट नहीं करते हैं असली में, ठीक. जस्ट फॉर कंटेक्स्ट, दैट इज अ ग्रीक माइथोलॉजी डॉग, द गार्जियन ऑफ हेल. तो MIT वालों ने वो लिया था, काफी क्रिएटिव थे वो, इसलिए कर्बरोस का सिंबल वो 3 कुत्ते हैं. बट या कर्बरोस टिकट को रोस्ट करते हैं, देयर इज नो एनिमल killing here. Then we have pass the hash with mimicards. Mimicards is a very popular tool and a very interesting thing to have. So I'll suggest, if you have Active Directory access या कुछ है तो एडमिनिस्ट्रेटर को बिना बताए एक बार डाल के देखना, और कुछ हो जाए अटैक तो उसको बता देना बात. And last one is LDAP injection. I hope everyone knows SQL injection, right? Similarly, LDAP injection होता है. So we'll first start with LDAP injection only. Okay. So anyone knows what LDAP injection is over here? Okay. So when we talk about the LDAP protocol, उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं. जैसे Kerberos में होता है ना, पहले ये गया हो इधर उधर, ऐसे ही LDAP में भी पहले हम बाइल करते हैं, फिर हम एक क्वेरी भेजते हैं, उस क्वेरी का रिजल्ट आता है, हम उसको एनालाइज करते हैं और फिर कुछ तो प्रोसेस एप्लीकेशन में लिखते हैं. सिमिलरली अगर उस LDAP प्रोटोकॉल में एक सर्च फिल्टर भेजा जाता है, विच इज समथिंग लाइक, जैसे बोलते हैं जैसे SQL में हम क्वेरी लिखते हैं, वैसे LDAP में भी एक हम सर्च फिल्टर भेजते हैं. If we somehow manage to inject something in that LDAP search filter, hence you can attack the server. So the LDAP injection है, this attack doesn't occur in the network itself, but this is something which occurs on the applications. तो जो हम applications use करते हैं ना, अगर वो Active Directory से connected है और उस सही से उसमें कोड नहीं लिखा है, लॉजिक नहीं लिखा है, स्केपिंग नहीं किया है, सैनिटाइजेशन नहीं किया है, so it is very prone to LDAP injection. And it can lead to very severe consequences as well. Okay, अगर user successfully कर पाता है LDAP injection, so worst case में authentication bypass is also possible. Okay, so that's one thing. So I'll just show you a quick demo about LDAP injection. But उसे जानने के लिए LDAP search filter समझना जरूरी है. Okay, so सर्च फिल्टर किन को नहीं पता है, किनको नहीं पता. ओके, तो मेनी पीपल डोंट नो. सो कैन यू सी दिस एम्परसेंड? इट स्टैंड्स फॉर और, सॉरी एंड, जैसे हमारा बेसिक कोडिंग में होता है. वी हैव अ पाइप, इट स्टैंड्स फॉर और. एंड ये जो ब्रैकेट्स है ना अपने कर्ली राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर जो कंडीशन लिखी है ना, वो ट्रू होती है ना, तो हमारे को LDAP सर्वर कुछ रिटर्न में रिजल्ट देता है. ठीक है, एंड दिस सिंटेक्स नीड्स टू बी एग्जैक्टली करेक्ट, तभी वो चलेगा. सो अगर मैं एक आइडियल सिनेरियो की बात करूं, तो सर्च फिल्टर कुछ ऐसा दिख सकता है. ऑब्जेक्ट क्लास इक्वल्स टू यूजर, साम अकाउंट नेम इक्वल्स टू विकास. मतलब कि ऑब्जेक्ट क्लास होती है, हर ऑब्जेक्ट की क्लास होती है. तो हम सर्च फिल्टर को बोल रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट क्लास यूजर है और उसका साम अकाउंट नेम, यानी कि जो यूजर नेम है वो विकास है, तो मेरे को रिजल्ट दे दो. सिंपल. अगर मैंने सही पासवर्ड डाला, सही से ऑथेंटिकेशन बाइंड होता है, आई विल गेट द रिजल्ट. बट व्हाट विल हैपन इफ आई चेंज विकास, द यूजर नेम विकास, with a telephone number or anything like this. Can you see this telephone number? Telephone number is equals to asterisk. Asterisk मतलब कुछ भी, देख SQL में होता है. ठीक है, तो अगर हम LDAP सर्च फिल्टर में साम अकाउंट इज इक्वल्स टू विकास एंड टेलीफोन इज इक्वल्स टू एस्ट्रिक लिख रहे हैं, तो अगर मेरे पास करेक्ट पासवर्ड है, इफ आई हैव द करेक्ट पासवर्ड, देन आई विल बी एबल टू रिट्रीव द टेलीफोन नंबर ऑफ विकास. ठीक है, तो टेलीफोन नंबर विकास इज इन डिमांड, तो लड़कियां मांगती है उसका नंबर. हियर इज विकास, दिस फॉर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो उसका नंबर निकाल के हम दे सकते हैं.
बिना उसकी परमिशन। बट जोक्स अपार्ट, आइडियल सिनेरियो में कोई नंबर नहीं निकालेगा, बट सीरियस अटैक्स कोई करता है। सो अगर एप्लीकेशन का लॉजिक ठीक नहीं लिखा है, एलडैप एस्केप नहीं लिखा है, उस केस में डमी यूजर्स क्रिएट हो सकते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन इन वर्डप्रेस एंड ड्रूपल जुमला। जितनी भी एप्लीकेशन है, अगर उसमें आपने एलडैप लॉगिन के टाइम पे वहाँ सर्च फिल्टर लगा दिया, तो डमी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं एंड यू कैन रीसेट द पासवर्ड एंड प्ले अराउंड विद देम एंड यू कैन ऑल्सो रिट्रीव इन्फॉर्मेशन। तो रीड तो हो ही जाता है, बट राइट ऑपरेशन एप्लीकेशन में तो पॉसिबल है। सो इट्स इजी टू अंडरस्टैंड, बट हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस के भी खतरनाक होते हैं। So I'll show you a live demo. So I'm not using any real application. I've just created a basic login screen using PHP. Login को दिखेगा नहीं, पीछे दिख रहा है क्या? It's visible, right? And my voice is also audible, right? ठीक है. So let's consider I have a user. तो चलो विकास का एग्जाम्पल लेता हूँ। I have a user विकास और उसका पासवर्ड है, जो कि मेरे को बाय चांस पता चल गया, बिकॉज प्री रिक्विजिट तो है, इन्फॉर्मेशन रिक्वायर मतलब गैदर करने के लिए प्री रिक्विजिट है कि पासवर्ड पता होना चाहिए। तो अगर कोई स्क्रिप्ट चला रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन ब्रूट फोर्स यूजिंग कॉमन लिस्ट ऑफ पासवर्ड। तो वो भी हम देखेंगे आगे, कॉमन लिस्ट ऑफ पासवर्ड कैसे हार्म कर सकती है। बट पासवर्ड पता है और यूजर लॉग इन हो रहा है, तो आई एम गेटिंग दिस पर्टिकुलर मैसेज, यूजर फाउंड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, या हो रहा है या। तो मेरे को पता है कि यूजर नेम क्या है, मेरे को पता है पासवर्ड क्या है, बट मेरे को इंटरेस्ट ये है कि मैं उसको कैसे हार्म कर सकता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, तो जो विकास यूजर नेम की वैल्यू थी, उसमें मैंने अल्डाप को एक इस टाइप का मैं सोच मतलब ऐसे इंजेक्शन प्रोड्यूस करूँगा जो कि ओवरऑल मेरा जो सिंटैक्स है उसको हार्म ना करे, मतलब सिंटैक्स करेक्ट है। सिंटैक्स करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन खोला है, दूसरा बंद किया, उसके साइड साइड वाला तो लगा ही होगा। ठीक है, एंड इफ आई एंटर द पासवर्ड और मैं हिट करता हूँ, ओके, सो इस केस में यूजर फाउंड ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे सर्च फिल्टर को देखूँ, अपना ये जो मेरा सर्च फिल्टर है, ऑब्जेक्ट क्लासेस को जो है सामग्री आश्रित, इसका मतलब ये है कि टेलीफोन नंबर एग्जिस्ट तो करता है। ठीक है, यही सेम चीज़ अगर मैं अपने अकाउंट के साथ करता और मैं अपना पासवर्ड डालता तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड आता। हम कंसिडर मैंने मोबाइल नंबर नहीं लगाया उसका, तो ऑथेंटिकेशन फेल होगा, यूजर फेल नॉट फाउंड। सो बेसिकली इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, मे बी वो यूज़र है नहीं, बट अगर यूज़र का टेलीफोन नंबर सेट नहीं होगा और मैं एस्ट्रिक लिखूंगा तो मेरे को फॉल्स रिजल्ट आएगा। फॉल्स रिजल्ट मतलब कि मिला नहीं उसको। लेकिन विकास के केस में मेरे को पता है कि यूज़र नेम का मतलब उस यूज़र का मोबाइल नंबर तो सेट है, सो मैं वहाँ ब्रूट फोर्स करना स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे 1 एस्ट्रिक डाला, इसका मतलब ये है कि स्टार्ट 1 से हो रहा है और लास्ट पे एस्ट्रिक है, और मैंने पासवर्ड डाला, तो देखते हैं क्या बोलता है वो, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। 1 में फेल हो गया अपना, और 2 के केस में ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल आ रहा है, मतलब उसका मोबाइल नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो आई कैन जनरेट अ स्क्रिप्ट, उसमें मैं एक एक करके नंबर्स लगा सकता हूँ, एंड एट लास्ट अगर मैं उसका करेक्ट फ़ोन नंबर डाल के पासवर्ड डालूंगा, देन आई कैन मेक श्योर कि हाँ भाई पासवर्ड तो उसका मोबाइल नंबर तो यही है। दिस इज़ अ वेरी नॉन मेलिशियस थिंग। नंबर निकाल के क्या ही करेंगे विकास का, लेकिन मतलब कर सकते हैं विकास, पूरा मत मानना, बट वी कैन नॉट हार्म दी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर अल्लाह इंजेक्शन ऐसी जगह किया कि तुम एप्लीकेशन में डमी यूजर्स बना पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल। आई कुड हैव शोन दैट
if you guys are interested, you can come at my booth. I'll show you LDAP Injection proper application है मेरे पास, जिसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ. But for the constraint of time, हम इतना ही देखता हूँ. So I hope everyone got a gist what LDAP injection is. ठीक है. Coming on to password spraying. किसी ने सुना है password spraying अभी तक? Anyone have an idea what password spraying is? Okay. Can you guess? Password spraying क्या होगा? Oh, yes, तो होगा. मैं लिख दिया. हाँ, can you guess password spraying क्या होता है? Sorry. Spraying मतलब छिड़कना, right? So this is a kind of brute force attack only. How it is different is you have a set of common passwords and you use that common password against every user. So I am spraying one password on all the users of that domain. So ट्रेडिशनल ब्रूट फोर्स से अलग है थोड़ा सा, बट इस केस में ये है कि एक बार अगर कोई मशीन कॉम्प्रोमाइज हो गई, यू हैव द एक्सेस टू डीसी, यू कैन स्प्रे डिफरेंट काइंड ऑफ पासवर्ड अगेंस्ट मल्टीपल यूजर्स एंड सी कि कौन सा उसका पासवर्ड असली में है. यू गाइस मस्ट हैव फेस्ड इश्यूज विद रॉन्ग पासवर्ड्स. कभी ऐसा हुआ है कोई एप्लीकेशन में डाल रहे हो और पासवर्ड गलत बता रहा है? ऐसा है क्या? बैंकिंग ऐप में कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुमने पासवर्ड डाला हो यूजर नेम के साथ और उसने बोला हो इनवैलिड पासवर्ड, बस इनवैलिड पासवर्ड आया हो, या फिर ये आता है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट? और कुछ एप्लीकेशन में आता है इनवैलिड पासवर्ड. व्हाट डू यू प्रेफर, क्या आना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड या फिर सिर्फ पासवर्ड गलत बताना चाहिए? मिक्स व्यू है. सिर्फ पासवर्ड बताना चाहिए. वो कौन है? सिक्योरिटी एक्सपर्ट से नहीं पूछ रहा हूँ, यूजर एज ए यूजर पूछ रहा हूँ. सिर्फ पासवर्ड बताना चाहिए. तो अर्लियर व्हेन आई डिडंट हैड नॉलेज ऑफ दिस थिंग, साइबर सिक्योरिटी, आई यूज्ड टू थिंक कि यार बता देना यूजर नेम क्या है, मैं क्यों फॉरगेट यूजर नेम करूँ. लेकिन अगर आपका यूजर नेम सही है, पासवर्ड गलत है, पता चल जाता है, तो उस केस में ब्रूट फोर्स बहुत ईजी हो जाता है करना. लेकिन उस केस में बचाया कैसे सकते हैं मशीन को? मशीन को हम लॉकआउट कर देते हैं, सॉरी यूजर को हम लॉकआउट कर देते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में. अगर तुम एक यूजर के अगेंस्ट, जैसे बैंक की ऐप्स में होता है, राइट, 4-5 बार पासवर्ड गलत डाल दिया तो लॉक हो जाता है. सिमिलरली एक्टिव डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है. तो ब्रूट फोर्स तो हो नहीं सकता उस पर. लेकिन पासवर्ड स्प्रिंग क्यों हो जाता है? क्योंकि तुम अगर 100 यूजर्स हैं, 100 यूजर्स पे तुम एक ही बार में, 100 यूजर्स तो बहुत आइडियल सिनेरियो होंगे, इट्स यूजुअली इन थाउजेंड्स, ठीक है, 1000 यूजर पे एक ही पासवर्ड लगा रहे हो, और जो जब सेकंड एंड दूसरा पासवर्ड लेके तुम आओगे, सो account lockout would not be detected by the DC. The domain control won't be able to attend to know that brute force type को आ रहा है. So रिश्ता वही सोच नहीं, brute force को थोड़ा सा बदल दिया, opposite कर दिया and password string में convert कर दिया. So password string करना is very easy. If you have a machine which is compromised, okay, when I'm saying compromised मतलब Active Directory इतना तो safe है कि अगर जब तक तुम्हारा एक यूजर नेम पासवर्ड या फिर एक मशीन कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, तब तो कुछ नहीं हो सकता. लेकिन व्हाट इफ विकास इज ऑन नोटिस पीरियड और उसको मैं पसंद नहीं हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, और आखिरी दिन वो मशीन में लॉगिन करके कुछ करने की सोच लेता, छोड़ना मत, ठीक है, बोल रहा हूँ, बट इट्स पॉसिबल, राइट? मैलिशियस थिंग कैन बी टेकिंग प्लेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर 10,000 लोग हैं, MNCs हैं जहाँ 15-20 हज़ार लोग बैठे होते हैं, अगर किसी का मूड खराब है और उसने छान ली, देखा जाएगा जो होगा, तो फिर पासवर्ड स्पैम करा जा सकता है. तो जितने भी अटैक्स हम बोल रहे हैं, वील सी कि उनको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है. आई विल शो यू अ वीडियो ऑफ द डेमो, वरना वॉलंटियर मेरे को 10 मिनट दिखाने लगेंगे, वो ऑलरेडी दिखा रहे हैं मेरे को. ओके, सो ये एक कॉम्प्रोमाइज मशीन है, और ऐसे कॉम्प्रोमाइज मशीन कि मैंने एक इनवैलिड यूजर है, इनवैलिड यूजर से, सॉरी नॉट इनवैलिड, एक कॉम्प्रोमाइज यूजर नेम और पासवर्ड है, वो पासवर्ड और वो यूज़ करके मैं मशीन में आ जाता हूँ. अगर तो क्या होता है, और अगर करेक्ट GPO सेट नहीं है, GPO यानी कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट अगर सेट नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी में अगर कोई यूज़र होता है तो उसके अगेंस्ट एक GPO होता है, ठीक है. तो अगर वो करेक्टली सेट नहीं है तो क्या हो सकता है दिखता. सो वो जूम्ड इन है तो कुछ चीज़ें कट के दिख रही है, बट पावर शेल में मैंने किया,
अभी मेरा अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो चुका है और मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, ठीक है। इट्स वेरी easy to do password spraying. There are tons of applications available, मतलब scripts available है। उस script में actually कुछ नहीं है, C# की फाइल होती है और C# की होती है या फिर PowerShell की मॉड्यूल भी हो सकता है, और उसमें हम लोग रिट्रीव करते हैं डोमेन्स की लिस्ट यूजिंग दी privileges of the account which is currently logged in। तो वो डोमेन जॉइन मशीन से कनेक्टेड है, तो वो लिस्ट ऑफ यूजर्स फेच कर सकता है और ऑथेंटिकेशन के लिए बाइंड LDAP का जो प्रोटोकॉल होता है उसका क्वेरी लिख के वो थ्रो कर सकता है। तो वो होता हुआ नहीं दिखेगा बिकॉज स्क्रिप्ट में वो सब लिखा हुआ है। तो जस्ट गिविंग अ कंटेक्स्ट की स्क्रिप्ट में क्या है, यूजर फेच हो रहा है, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह ट्राई हो रहा है। सो आई जस्ट अटैक करने के लिए बस अपने को मॉड्यूल रन करना है, उसको इम्पोर्ट करना है और एक लिस्ट ऑफ कॉमन पासवर्ड्स के साथ आना है। सो कोई अटैकर करने पे आएगा तो वो डाउनलोड करेगा गिट से। लेकिन आई हैव जस्ट टेक वन एग्जांपल ऑफ अ कॉमन पासवर्ड which we all tend to use. So that is this password. Just changing a bit few things and running a password spray. So can you see मेरी टीम के लोग कितने काम शुरू हो गए हैं, सबने पासवर्ड रखा है। ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। तो these are not dummy users, just joking, टीम वाले ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो सबका पासवर्ड ही सेट है। तो स्क्रिप्ट में क्या हुआ, ये स्क्रिप्ट छोटी सी थी एंड नंबर ऑफ यूजर्स कम थे इसलिए जल्दी रन हो। इट यूजुअली टेक आवर्स, बट इन दिस केस वी स्प्रेड द पासवर्ड अगेंस्ट यूजर नेम। तो देयर आर ऑलमोस्ट 100 यूजर इन द सिटी और उसमें से 10 अकाउंट्स का पासवर्ड यही है सेट हो रखा है। इट्स वेरी इजी, ओके। एंड दिस हाउ यू कैन डू अ पासवर्ड थिंग। लेट्स ट्राई इट विद सम अदर पासवर्ड which we think is secured and you may not have heard it, it's common नहीं होगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन हो सकता है। तो इस केस में मेरे पास 3 अकाउंट्स आ गए and as you can see the first one, it's not visible, the first one is the admin account। तो see the 10 मतलब अगर पता चल जाता है तो कितना खतरनाक हो सकता है। सो उसको मिटिगेट कैसे किया जा सकता है, इट्स वेरी इजी। यू जस्ट हैव टू अप्लाई सम ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। अगर वो सही से आपने अप्लाई किए, यू कैन रिस्ट्रिक्ट पीपल यूजिंग द पावरशेल एंड द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज, जिससे पासवर्ड स्ट्रिंग होती है। सो ये दूसरा यूजर है एंड इट्स अ नॉन प्रिविलेज्ड यूजर। ऑल्सो विंडोज की डिफेंडर सर्विस ऑन होती है, दैट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट the users from accessing other accounts detail using the query. In this case, sorry it's not visible because of the zoom, but अगर मैं PowerShell access करने का भी ट्राई करता हूँ CMD से या फिर वैसे, तो अलाउ ही नहीं करेगा। तो ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स को हम इस तरीके से एनहांस कर सकते हैं। So I hope password string समझ में आ सकता है। Any questions for password string? Okay, तो password string में questions है क्या कुछ? Okay. Coming on to the pass with hash, so I'll just give you a quick theoretical knowledge of this. Pass with hash is also again similar to password string. एक non-privileged machine अगर compromise हो जाती है, it's the user not the machine. अगर कोई एक user compromise हो जाता है उसके credentials, they can use Mimikatz tool and they can use the password hash of the previous user. So password hash के लिए एक prerequisite ये है कि अगर एक कॉमन मशीन है, कॉमन वर्क स्टेशन है एंड दैट इज बीइंग यूज्ड बाय मल्टीपल यूजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर भी उसी में आ रहा है, उसी में तुम्हारा सुपर एडमिन भी आ रहा है, उसी में तुम्हारा सब्सक्राइबर भी आ रहा है, मतलब हर टाइप के यूजर्स उसी मशीन को एक्सेस कर रहे हैं, तो हर एक का हैश होगा उसमें, हर एक का कैशे होगा। तो एल से डम करके एक कमांड होती है यूजिंग विच आई कैन एक्सट्रैक्ट द हैश को मैं यूज करके वापस से टिकट में लगा सकता हूँ नए उसमें, और मैं किसी और का लॉग इन कर सकता हूँ ना पावरशेल में। अगर मैंने एडमिन से लॉग इन कर दिया, मैं LDAP क्वेरीज करके कुछ भी कर सकता हूँ, तबाह कर सकता हूँ जो करके तरह पैटर्न, ठीक है। तो पासवर्ड हैश इज पास द हैश इज अ वेरी डेंजरस अटैक
which can be done. And the only mitigation is having completely separate workstation for administrator. Okay, so I had planned a demo, but due to time constraint, I cannot. Last one is Kerberoasting. Kerberoasting पता है क्या किसको? नाम से क्या लग रहा है? Okay, so Kerberoasting क्या है? It's basically cyber attack ही है, but it involves exploiting TGS. जो अपना टिकट ग्रांटिंग सर्विस होता है ना, उसको एक्सप्लॉइट करना है. यहाँ भी प्रीरिक्विजिट वही है, कॉम्प्रोमाइज्ड यूजर होना चाहिए. बट इस केस में हम क्या करते हैं, हम TGS को इंटरसेप्ट करते हैं एंड उस TGS को डिक्रिप्ट करके उसका पासवर्ड हैश ले लेते हैं एंड उसको फर्दर नए टिकट में लगा के हम उसका जो कैशे टाइमिंग और वो सब टाइम स्टैम्प होता है वो बढ़ा सकते हैं एंड उस यूजर को हम लॉग इन कर सकते हैं. ठीक है, सो फिर डिटेल डायग्राम वो 5 मिनट हो रहा है, so I cannot go through it. You can come and talk to me after the session if you want to know more about this Kerberoasting. But it's a bit easy attack, but it needs a lot of prerequisites. कि तुम्हारे पास compromised machine होनी चाहिए, and the main thing which is needed, encryption method should be RC4. RC4 encryption method, if anyone doesn't know, it's a old encryption method which was used earlier. बट वी डू हैव अ क्रैक ऑफ इट, उसको हम डिक्रिप्ट कर सकते हैं बिना की के. सो Kerberos में इनिशियली RC4 यूज होता था. सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि सेटअप करते हुए उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया एंड RC4 को ही डिफॉल्ट पे पड़े रहने दिया. तो वो टिकट डिक्रिप्ट हो सकता है. अगर कोई मशीन पे लॉग इन कर रहा है, Kerberos टिकट को फेच करेगा और डिक्रिप्ट करके तुम्हारा हैश देख सकता है वो. लेकिन इन केस यू आर यूजिंग AES encryption method, which is possible in Kerberos now, then this attack is not possible to do or replicate. So the main things which we can do to mitigate this attack is again not having common machine for administrator and people, and use a good encryption method like, and not RC4. RC4 by default use होता है, उसको 100% change करना होता है. And this attack we have ourselves seen in one of our clients' machine. He came to us and we also didn't get an idea कि वो कैसे रहा है, but later we got to know कि RC4 encryption method लगा रखा था client ने, इस वजह से हुआ था. Okay, so attacks के बारे में काफ़ी बात की. Sorry, we have to skip few demos. But if you talk about the consequences, they can be minimalistic to catastrophic. So अगर मैं consequences की बात करूँ, data breach, obviously network compromise हो सकता है. Directory enumeration एक चीज़ है, जैसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तुम्हें पता चल सकता है, उनके नाम मिल सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल मिल सकते हैं. यू कैन बाईपास ऑथेंटिकेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी डेंजरस. अगर SQL इंजेक्शन, LDAP इंजेक्शन यूज किया, you can easily bypass the authentication and you can access their services and their application. Then we have financial impact for sure. Compliance violation. You can lose your compliance if you are getting attacked by several of these. And for reference, GDPR, अगर compliance reach करना, the best thing to implement. So compliance related issues आ सकते हैं. And access to sensitive data is obvious. For best practices, इन अटैक्स से बचने के लिए क्या करना है? So अगर AD की बात मैं करता हूँ, तो it's all about how you set up. If you are setting up it correctly, you are using the correct authentication methods. You are using the correct encryption methods. You are making sure admins के अलग workstations हो and non-privileged users के अलग हो. You have a very strong GPU policies for password policy, and you have educated them and have MFA for LDAP protocol. Then it's possible that you don't get exploited because of these attacks. Okay. So that's it for the Kerberos and LDAP vulnerabilities, the techniques demo. So you can have any questions, you can tell me. Any questions? कोई तो कुछ लोग फ्लाइट डाली है. LDAP इंजेक्शन तो अगर हम कोई भी थर्ड पार्टी है, सो इफ यू आर ट्रस्टिंग ऑन अ थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल हमारे क्लाइंट miniOrange को करता है, नॉट एडवर्टाइजिंग बट आई एम एडवर्टाइजिंग. सो उस केस में अगर सही से एस्केप लगाया है, सही से हम लोगों ने सैनिटाइजेशन लगाया है, सो इट्स नॉट पॉसिबल.
if you're using any language, you have इंजेक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए एस्केप यूज कर दो, सैनिटाइजर छोड़ दो, इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वो ब्रेसेस को अलाउ ही नहीं करेगा, एस्ट्रिक और ग्राउंड ब्रेसेस को अलाउ नहीं करेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू इंजेक्ट एनीथिंग इन द सर्च फिल्टर. सो मिटिगेट करने के लिए वो कर सकता हूँ. या Kerberoasting से बचना हो, so make sure that encryption method which you are using is correct. RC4 method नहीं use करना चाहिए. You should always go for proper encryption methods, and administrators की machines अलग होनी चाहिए. Okay. So I'll be at the booth center. If you guys have any further questions, you can come and talk to me, and we can chat about it. I really appreciate it. Give some feedback and learning over here.